Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is again a games and tournament based set, which I've taken from previous year's SimCat and the census. In the Hindustan Premier League, total 5 teams, Jaipur Royals, Chandigarh Kings, Kolkata Rider, Hyderabad Volcano, and Bangalore Masters participated. Each team played one match against every other team, and no match ended in a draw. Each match involved a number of gold coin called award for that match, such that the team that lost the match gave the number of gold coin equal to the award for that match to the team that won the match. The sum of the gold coin received by a team at the end of the tournament is called profit of the team, while the sum of the gold coin gave by a team is at the end of a tournament is called loss of a team. Further, it is known no two team won the same number of matches and no two team lost the same number of matches. For any team, the award for any two matches were different. The award for any match is between four is neither less than four nor more than 21. The sum of the profit and the loss of a team that won all the matches as well as a team that lost all the matches was 20 and 40, including both 20 and 40. The sum of the profit and the loss for the team Jaipur Royals, Chandigarh Kings, Kolkata Riders, Hyderabad Volcano, and Bangalore Masters are 55, 37, 40, 55, 53, respectively. The number of matches won by Hyderabad Volcano was equal to the number of matches lost by Jaipur Royals. The number of matches lost by Kolkata Rider was more than the number of matches lost by Hyderabad Volcanoes. Bangalore Master won 17 gold coins against Jaipur Royals, and the award involved in the match between Kolkata Rider and Hyderabad Volcano was 4. The profit of Jaipur Royal was equal to the loss of Hyderabad Volcanoes. Questions भी पढ़ लेते. How many matches did Chandigarh King lose? Question number 2 कह रहा है what was the total profit of Bangalore Masters? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी मैचेस डिड जयपुर रॉयल विन. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच टीम वन 3 मैचेस. ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट जिसमें कि राउंड रॉबिन का सेटअप है. 5 टीम है, पांचों आपस में मैचेस खेल रही हैं एंड उनके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो विन लूज के बेसिस पे हो रहा है. यहाँ पे कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, तो यानी कि कोई टीम या तो जीत रही है, कोई टीम हार रही है. इफ द टीम विंस, दैट पर्टिकुलर टीम विल गेट सम कॉइन्स जो कि हारने वाली टीम दे रही होगी. उस पूरे कॉइन को हम अवार्ड ऑफ दैट मैच कहने वाले हैं. ठीक है. अब जो टीम जीतेगी, जो अमाउंट मिला हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, एंड जो अमाउंट दिया जा रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉस ऑफ दैट टीम. ठीक है. अब मतलब ऐसा होना कि लेट्स से आई वन 3 मैचेस एंड आई लॉस्ट 1 मैच, तो मेरा 3 मैचेस का जो अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, एंड जो मैंने एक मैच हारा है उसका वो जो अमाउंट मैंने दिया है तुम्हें, लेट्स से तुम्हारा और मेरा मैच हो जहाँ पे आई लॉस्ट दैट मैच, सो द अमाउंट गिवन बाय मी वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट फॉर यू एंड लॉस फॉर मी. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. मैंने क्या करा, एक राउंड रॉबिन टेबल बना लिया जिसमें मैंने पांचों टीम को मेंशन कर दिया. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. नो टू टीम वन द सेम नंबर ऑफ मैचेस एंड नो टू टीम लॉस द सेम नंबर ऑफ मैचेस. कोई भी दो टीम ऐसी नहीं जो कि सेम नंबर ऑफ मैचेस जीती हो या हारी हो. टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं? 4 होने वाले हैं. ठीक. यानी कि कोई एक टीम ऐसी हो सकती है जो चारों जीत गई हो, कोई एक टीम ऐसी होगी जो 3 जीती हो, कोई एक टीम ऐसी होगी जो 2 जीती है और 2 हारी है, कोई एक टीम ऐसी होगी जो 1 जीती होगी, 3 हारी होगी, कोई एक टीम ऐसी हो सकती है जो 0 जीती होगी और 4 हारी होगी. यही 5 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. एंड अगर ध्यान दो तो यही 5 टीम भी यहाँ पे है जो कि अपने को आइडेंटिफाई करनी है. यानी कि यही पाँचों के लिए अपने को यहाँ पे चीज़ों को फिगर आउट करना है. यानी कि इन्हीं पाँचों में से कोई एक टीम ऐसी होगी जो कि सारे मैचेस जीती है, कोई सारे हारी है, कोई 2-2 जीती है, ऐसा निकालना होगा. ठीक. पॉइंट नंबर 1 नोटेड. पॉइंट नंबर 2, फॉर एनी टीम द अवार्ड फॉर एनी 2 मैच वर डिफरेंट. किसी भी टीम का जो अवार्ड है दैट इज गोइंग टू डिफरेंट. मतलब मेरा और आपका लेट्स से ए और बी का मैच हुआ, वहाँ पे जो अवार्ड इन्वॉल्व्ड है वो डिफरेंट होगा, ए और सी में अलग होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है. ठीक है. द अवार्ड फॉर एनी मैच इज नीदर लेस देन 4 नॉर मोर देन 21. यानी कि जो अवार्ड किसी एक मैच में वो 4 से लेके 21 के बीच में कोई अमाउंट होने वाला है. ठीक है. 4 से कम नहीं हो सकता, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक. The sum of the profit and the loss of the team that won all the matches as well as the team that lost all the matches was between 20 and 40. ऐसी टीम जिसने सारे मैचेस जीते हैं और ऐसी टीम जो सारे मैचेस हारी है, यानी कि इनकी बात हो रही है. इन दोनों का जो सम आ रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लेट्स से आई एम अ टीम जिसने अ, तीनों मैच हारा है या चारों मैच हारा है. तो यू मे थिंक कि सर इसका तो माइनस होना चाहिए ना, बट यहाँ पे माइनस की नहीं बात हो रही, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है. यानी कि लेट्स से मैंने तुम्हें 21 कॉइन दिए, तो मेरा वो दैट विल बी काउंटेड एज सम ऑफ प्रॉफिट. ठीक. सम ऑफ लॉस सॉरी, एंड दैट इज गिवन टू समवन एल्स, तो वो 21 वहां पे चला जाएगा. ठीक. द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस वन ऑल मैचेस एज वेल एज द टीम दैट लॉस्ट ऑल द मैचेस वाज बिटवीन 20 एंड 40. यानी कि वो 20 और 40 के बीच में होना चाहिए था इन दोनों का. ठीक है. अच्छा.
पॉइंट नंबर 4 नोटेड. पॉइंट नंबर 5, द सम ऑफ द प्रॉफिट जयपुर रॉयल्स, चंडीगढ़ किंग्स, कोलकाता राइडर्स एंड इट इज गिवन एज इतना, यानी कि जयपुर रॉयल्स का 55 है, 37 है, 40 है, 55 है एंड 53 है. ठीक? ये इनका सम आ गया. सम ऑफ व्हाट? दी प्रॉफिट एंड द लॉस. अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में यार अपने को एक चीज बोली थी. वो क्या बोल रहा था कि जो ऐसी टीम, दो टीम जो सारे मैचेस जीती और सारे मैचेस हारी, उनका जो सम है वो क्या होने वाला है? 20 से 40 के बीच में होने वाला है. यानी कि वो टीम जयपुर रॉयल्स नहीं हो सकती, यानी कि वो टीम ये पॉसिबली हो सकती है, यानी कि वो टीम ये हो सकती है, यानी कि वो टीम ये दोनों भी नहीं हो सकती. सो जो दो टीम बन सकती थी जो सारे मैचेस जीती और सारे मैचेस हारी हैं, वो कौन हो सकती है? चंडीगढ़ किंग्स या हैदराबाद, नहीं, कोलकाता राइडर्स. ऐसा. अब उसमें से कौन है नहीं पता. चंडीगढ़ किंग्स एंड कोलकाता राइडर्स हो सकते थे, ऐसा यहाँ पे मैंने फिगर आउट कर लिया. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 से हमने ये कर लिया. द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वोल्केनो वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय हैदराबाद वोल्केनोज. यानी कि नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वोल्केनोज, यानी हैदराबाद वोल्केनोज का जो विन का नंबर है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय जयपुर रॉयल्स, यानी कि इसके लॉस्ट के नंबर के बराबर है. लेट्स से हैदराबाद वोल्केनो हैज वन 3 मैचेस, तो 3 मैचेस हैज बीन लॉस्ट बाय जयपुर रॉयल्स. ठीक है. ये कौन-सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो, अब ये और ये तो जा चुका है फॉर चंडीगढ़ किंग्स एंड कोलकाता राइडर्स, तो वो इन तीनों में हो सकता था. अब यहाँ पे देखो, क्या हो सकता था? ये और ये बन सकता था कि यानी कि लेट्स से हैदराबाद वोल्केनो 3 जीता और 3 जयपुर रॉयल्स हारा है, या 1 जीता और 1 हारा, ऐसा? पर ये कभी नहीं हो सकता, ठीक? यानी कि अगर ध्यान दो तो सीके और केआर यहाँ पे था, सिमिलरली सीके और केआर यहाँ पे था, ऐसे ही हैदराबाद वोल्केनोज़ और जयपुर रॉयल्स अगर यहाँ पे हैं, जयपुर रॉयल्स और हैदराबाद वोल्केनोज़ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कौन बच गया? ऐसी टीम जो दोनों 2-2 का होने वाला है, वो टीम कौन-सी होने वाली है? वो होने वाली है बैंगलोर मास्टर, ठीक? अब इससे अपने को ये मिल गया कि बैंगलोर मास्टर इज़ अ टीम जिसने 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, ठीक? चलो थोड़ा और पढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 6 से हमने इतनी चीज़ यूज़ कर ली. पॉइंट नंबर 7, बैंगलोर मास्टर वन 17 गोल्ड कॉइन अगेंस्ट जयपुर रॉयल्स. ठीक है, बैंगलोर मास्टर ने क्या करा? जयपुर रॉयल्स के अगेंस्ट 17 गोल्ड कॉइन जीता है. ठीक है? यानी कि यहाँ पे ये हार गए थे, जो कि 17 गोल्ड कॉइन्स हारे थे। ठीक है? सेम काउंटर एंट्री होगी, ये ध्यान देना, ये जितना हार रहा है उतना ही वो जीत रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये हारा है 17 गोल्ड कॉइन्स और ये, ठीक है? यानी कि एक चीज़ ध्यान दो, ये एक्स अमाउंट है जो कि हार और जीत में जा रहा है और उसी का सम बन रहा है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो 55 का जो सम बना है, उसमें कंपोनेंट क्या है? कुछ ऐसा सम जो कि प्रॉफिट के फॉर्म पे, कुछ ऐसा है जो लॉस है। इसका जो लॉस है वो किसी का प्रॉफिट होगा, ये भी समझ सकते हो। ठीक है? यानी कि ये जो पूरा पाँचों है, इसका सम क्या बन रहा है ज़रा देखें। 5 7 12 12 5 17 3 20 कैरी 2 5 10 कैरी 2 5 2 7 5 3 10 क्या कर रहा हूँ 5 2 7 3 10 14 5 19 और 24 यानी कि 240। ये जो 240 का नंबर है, ये क्या है? ये पूरा सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। अब सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है? इक्वल ही तो होने वाला है। कैसे इक्वल होने वाला है? थोड़ा समझना। लेट्स से मैं 3 मैच खेला, तीनों जीत गया। तो मैंने जो तीनों जीता है, मेरे को किसी ने अमाउंट दिया होगा, वो किसी का लॉस होगा और मेरा प्रॉफिट होगा। यानी कि वो एक्स अमाउंट ही जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ध्यान दो तो। यानी कि वही टोटल जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, ये क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ लॉस ही तो आ रहा है। यानी कि ये जो 240 40 है, इसके अंदर टोटल प्रॉफिट कितना है? 120 का एंड टोटल लॉस कितना है? 120 का। ठीक? ये चीज़ हम क्लैरिफ़ाई हो रही है आपको? ठीक? फिर से लॉजिक समझा देता हूँ। लेट्स से एक्स अमाउंट का प्रॉफिट किसी को हुआ है, तो वो सेम अमाउंट किसी का लॉस भी तो है और उसी का सम तो ये 55 है या 37 या 40 बनते जा रहा है एंड ये पूरा टोटल कितना बन रहा है? 240। तो 240 में क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक? अच्छा, पॉइंट नंबर 7 से हमने कुछ और भी डिकोड कर लिया। पॉइंट नंबर 8, द प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल वाज़ इक्वल टू द लॉस ऑफ जयपुर वोल्केनोज़। ठीक है? पॉइंट नंबर 7 हमने पूरा नहीं पढ़ा था। Bangalore Master won 17 gold coins against Jaipur Royals, and the award involved between Kolkata Rider was and the award involved between Kolkata Rider Volcano was 4. ठीक है? कोलकाता राइडर और हैदराबाद वोल्केनो का जो मैच हुआ था, कोलकाता राइडर और हैदराबाद वोल्केनो में, उसमें जो है मैच में 4 और कोलकाता राइडर्स और हैदराबाद वोल्केनो में 4 का मैच इन्वॉल्व्ड। अभी मेरे को नहीं पता कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है? पॉइंट नंबर 7, द प्रॉफिट फॉर जयपुर रॉयल वाज़ इक्वल टू द लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोज़, यानी कि
प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स वाज इक्वल टू द क्या बोला हुआ है लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस। ठीक, ये दोनों अपने को यहाँ पे मिल गया। अब आपने को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी मैचेस डिड चंडीगढ़ किंग्स विन, प्रॉफिट और ये सारी चीजें पूछा हुआ है। हमने क्या करा, एक बार पढ़ते आए और हमने इतनी चीजों को नोट डाउन कर लिया। एक बार दोबारा से पढ़ते, मे बी वी वुड हैव मिस समथिंग, मे बी वी वुड हैव उस पॉइंट पे हमने छोड़ा था। जैसे यहाँ पे जो ये 5 4-5 पॉइंट है जो बड़े से, इन पे मेरे को दोबारा विजिट करूँगा एंड आई विल गेट दी थिंग्स। पॉइंट नंबर 1 में पता था कि भाई सारे मैचेस में जो ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्व्ड है वो यूनिक होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा था कि भाई फॉर एनी टीम अवार्ड इज़ डिफरेंट। अच्छा, नंबर ऑफ विन्स डिफरेंट है ये बता रहा था। अवार्ड इज़ 4 और ये तो पहले 3 तो बहुत ऐसे और मतलब ऐसे सिंपल से स्टेटमेंट है जो हमने नोट करा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 से दिमाग लगाते हैं। सम ऑफ द प्रॉफिट एंड ये व लॉस वाज़ 20 एंड 40। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा नोट करा हुआ था। पॉइंट नंबर 5 द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ टीम जयपुर रॉयल्स संडे, ये भी हमने नोट कर लिया था। पॉइंट नंबर 6 द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वोल्केनो एंड वाज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ जयपुर रॉयल्स, ये हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय कोलकाता राइडर वाज़ मोर दैन द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय हैदराबाद वोल्केनोस। अच्छा, ये पॉइंट मे बी हमने पढ़ते समय शायद मिस किया था। ये पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय कोलकाता राइडर वाज़ मोर। ठीक है, कोलकाता राइडर यानी कि या तो ये होना था, या तो कोलकाता ये होना था। यार एक चीज़ समझो, कोलकाता राइडर का मैच ज़्यादा है तो कैन इट बी 0? पॉसिबल नहीं है ना। मैंने यही लिया था ना कि ये विन और ये लूज़ का ये बन सकता था सिचुएशन। अगर मैं कोलकाता राइडर को ये दे देता हूँ कि ये 0 वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बिकॉज़ कोलकाता राइडर अगर 0 मैचेस लूज़ किया है, तो वो किसी से ज़्यादा क्या हो सकता है? उससे कम क्या दोगे? माइनस दोगे? पॉसिबल नहीं, यानी कि कोलकाता राइडर को क्या देना पड़ेगा? ये वाला। सो बाय दैट लॉजिक तुमने क्या कंक्लूड करा कि ये है तुम्हारा यहाँ पे कोलकाता राइडर और ये क्या आ जाएगा? चंडीगढ़ किंग्स। यानी कि चंडीगढ़ किंग्स सारे मैचेस जीत गया था। चंडीगढ़ विन, 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 विन। यानी कि चंडीगढ़ किंग के साथ जो भी मैच खेल रहा था वो सब हारते गए। लूज़, लूज़, लूज़। सिमिलरली कोलकाता राइडर्स सारे मैचेस हार गया, कोलकाता सारे हार गया, ठीक है? कोलकाता राइडर्स अगर सारे मैचेस हारा है, कोलकाता राइडर्स सारे मैचेस हारा है, लूज़ एंड लूज़ यानी कि उसके अपोनेंट सारे मैचेस जीत गए, ठीक? ठीक है? अब मेरे पास कौन बच रहा है? जयपुर रॉयल्स बच रहा है और बैंगलोर मास्टर। बैंगलोर मास्टर के बारे में तो मेरे को पता था ना, बैंगलोर मास्टर क्या होने वाला है? वो 2 मैच जीत रहा है और 2 मैच हार रहा है, जिसमें से 2 विन अपने को निकल चुका है, तो ये लूज़ ही होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे विन आना ज़रूरी है। नाउ फॉर हैदराबाद वोल्केनोस अपने के पास क्या है? हैदराबाद वोल्केनोस कैन बी अ टीम जिसने 1 जीता 3 हारा या 3 जीता 1 हारा। ठीक है? अब यहाँ पे यार ध्यान दो यार, हैदराबाद वोल्केनोस 2 विन ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है? अगर 2 विन ले चुका है तो हैदराबाद वोल्केनोस को मैं ये नहीं दे सकता ना, मेरे को यही देना पड़ेगा। सो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे ये मिल गया हैदराबाद वोल्केनोस और ये मिल गया मेरे को जयपुर। ठीक? ये आसान था निकाल पाना। देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ ना, हैदराबाद वोल्केनोस का 2 विन ऑलरेडी मिल चुका है, तो आई नीड टू गो फॉर 3 विन्स, तभी मैं कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? विन और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसका? लूज़। नाउ यू कैन सी जयपुर रॉयल्स का यहाँ पे 3 लूज़ बन गया, व्हिच मेक्स सेंस और ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू भी है कि इन दोनों का 3 विन है और 3 लूज़ का ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ठीक? नाउ दिस वाज़ आल्सो ईज़ी। ठीक है, निकाल पाना। अब अपने को ये चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। नाउ आई एम लेफ्ट विथ एक पॉइंट का जिसमें बोल रहा है कि दोनों का प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। अब उसका यूज़ क्या है वो देखते हैं। जो ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स एंड हैदराबाद वोल्केनोस। यार ये वाला तो अपने को कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। ऑल्सो मेरे को ये भी नहीं पता कि यार ये 55 पे क्या होने वाला है, 53 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 37 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 55 का क्या होगा। ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं? हाउ मेनी मैचेस डिड चंडीगढ़ किंग लूज़? चंडीगढ़ कितने मैचेस जीत रहा है या हार रहा है? चारों जीता, यानी कि वो 0 मैच लूज़ किया है ना? तो ये तो यार बड़ा आसानी से निकल गया। व्हाट वाज़ द टोटल प्रॉफिट फॉर बैंगलोर मास्टर? बैंगलोर मास्टर का टोटल प्रॉफिट क्या था? यार ये चीज़ निकाल पाना मुश्किल है। टोटल प्रॉफिट मतलब ये प्लस ये का निकालना है, ठीक है? अपने को टोटल प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर निकालना बचा है। मे बी दिस कैन हेल्प मी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये प्रॉफिट की बात हो रही थी, तो आई नीड टू रीथिंक ऑन दिस पार्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी मैचेस डिड जयपुर रॉयल विन? जयपुर रॉयल कितने मैचेस जीता है? 1 मैच जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है व्हिच टीम वन 3 मैचेस? 3 मैचेस जीतने वाली टीम कौन-सी थी? हैदराबाद वोल्केनोस थी। हैदराबाद वोल्केनो ने ही 3 मैचेस जीते। हैदराबाद वोल्केनो ने 3 मैचेस जीते, तो ऑप्शन नंबर सी।
सो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 वाज़ वेरी ईज़ी टू फिगर आउट। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जो कि थोड़ा ट्रिकी है जिसको अपने को यहाँ पे सीखना है, ठीक है? नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या पूछा प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर। मेरे को प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या पता है? मेरे को टोटल प्रॉफिट पता है, ठीक है? मेरे को ये पता है कि प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स व्हिच इज़ इक्वल टू लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस और मेरे को टोटल प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर पूछा, ठीक है? नाउ आई नीड टू क्रिएट अ सिनर्जी बिटवीन दीस गिवन इन्फॉर्मेशन। ये क्या बन सकती है? मेरे को टोटल प्रॉफिट क्या हो सकता है? वो 120 हो सकता है। व्हाट इज़ दैट 120? हाउ डिड आई कम टू दिस नंबर? 120 इज़ इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ चंडीगढ़ किंग्स प्लस प्रॉफिट ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस प्लस प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर्स प्लस प्रॉफिट ऑफ कोलकाता राइडर्स प्लस प्रॉफिट ऑफ चंडीगढ़ किंग्स, जयपुर रॉयल्स, ठीक है? ये चीज़ अपने को यहाँ पे दिमाग लगाना है। यानी कि ये क्या है? अब 120 में से ध्यान देना थोड़ा, ठीक है? 120 में से आपके पास क्या-क्या चीज़ गिवन है? आपको ये पता है कि भाई प्रॉफिट ऑफ चंडीगढ़ किंग कितना होने वाला है? चंडीगढ़ किंग तो सारा ही मैच जीता, तो यानी ये जो 37 का अमाउंट है, ये तो पूरा एंटायर प्रॉफिट है। यानी कि 120 इज़ इक्वल्स टू 37 तो है ही है, ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस यार ये तो अपने को कुछ भी नहीं पता, हम तो नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस तो अपने को पता नहीं है, ठीक? प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर ये तो अपने को निकालना है, ठीक है? प्रॉफिट ऑफ कोलकाता सारे मैचेस हारा है, तो यानी ये जो 55 का अमाउंट है ये क्या है? ये तो लॉस है इसका, ठीक? एंड प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स, ठीक? अब प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स के बारे में अपने को क्या पता है? इट इज़ इक्वल टू लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ विथ लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस? यानी कि ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि लॉस ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस प्लस प्रॉफिट ऑफ हैदराबाद वोल्केनोस प्लस प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर्स, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक? अब ये ध्यान देना, ये जो ये वाला पार्ट था, इसको मैंने यूज़ करा है। आई नो दिस कि भाई तुम कहोगे सर यार आपको ये सॉल्यूशन पता था तो आपने कर लिया। एग्रीड, मतलब मैं पेपर वाले फेज में शायद मेरे को क्लिक नहीं करता, अगर मैंने ये कभी भी सॉल्व नहीं किया हुआ है। अब क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो मेरे को पता है कि इन तीनों में सिनर्जी बनाना है। पेपर वाले फेज में अगर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहली बार मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 करता, 9 नंबर लेता और नमस्ते, भाग जाता, मैं नहीं दिमाग लगाता। आई वुड हैव मेड अ कैलकुलेटिव गेस क्योंकि ये टीटा क्वेश्चन है तो उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती। ठीक है? ये इतना सोच पाना वुड हैव बीन अ टफ पार्ट फॉर एनीवन हू हैज़ नेवर ट्राइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? अब ये दोनों का सम क्या है? ये प्रॉफिट ऑफ ये दोनों जो सम है, ये बेसिकली यही है ना? प्रॉफिट ऑफ हैदराबाद वोल्केनोज़ और ये क्या है? ये तो 55 ही है ना? इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा 55 से यानी कि क्या बन जाएगा 120 यहीं पे लिखता हूँ 120 इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर्स प्लस 37 एंड ये क्या बन गया 55 यानी कि 55 में 7 ऐड करूँगा तो 62 एंड 80 यानी कि प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर्स क्या निकल गया 120 माइनस 82 यानी कि 20 38 है ना? आंसर क्या होना चाहिए 38, ठीक है? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। कितना था 55 और 80 ओह! सॉरी आई थिंक मैंने ना मिस्टेक करा, ये 92 होना चाहिए था, ठीक है? 55 और कितना हो गया 55 और 37 ऐड करना था 55 और 37 तो 55 85 92 एंड ये फिर इस केस में 28 यानी क्या आंसर आना चाहिए था फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर शुड हैव बीन 28, ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट सेट मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 वाज़ सुपर ईज़ी निकाल पाना। क्वेश्चन नंबर 2 वाज़ समथिंग न्यू मतलब अगर आप में से कई लोगों ने 23 वाली प्लेलिस्ट करी तो वहाँ पे ये सेट अवेलेबल है तो दे मस्ट हैव डन दिस सेट। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं करी तो उनके लिए ये सेट एकदम लर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।